Okay, so remember this very carefully, and yes, I want you to listen to me clearly. Okay, और मुझे कुछ टाइम के लिए देख लीजिएगा. You don't have to write this on your copy and pen. आपको अपने कॉपी और पेन में लिखने की जरूरत नहीं है. Okay, but many times we need to keep our sadhana very secret. ठीक है ना. कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपनी साधना को राइट ओके जब तक गुप्त तरीके से करोगे नहीं, गुप्त तरीके से रखोगे नहीं, उस साधना में आपको सफलता नहीं मिलेगी. एंड द रीजन इज, एज आई टोल्ड यू, मोर देन 95%, 96% of the people, okay, the jealousy, the black magic, all those negativity come from the people who are around you, okay, who belongs to your bloodline, or who are very, very near relatives. And when you tell them, okay, uski knowingly or unknowingly, okay, the energies which is inside them, that will listen to you. I'm not telling that, okay, your friends has a bad intention about you. मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि आपके फ्रेंड के अंदर आपके लिए बैड इंटेंशन है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि योर रिलेटिव्स हैड अ बैड इंटेंशन अबाउट यू. They may be suffering of the black magic. They may be affected by the jealousy of some other people. So that means, okay, there is some type of force inside them, okay, that they don't want. They may be also suffering. ठीक है ना. वो भी किसी जेलेसी का शिकार हो सकते हैं, वो भी किसी ब्लैक मैजिक का शिकार हो सकते हैं, वो भी किसी आत्माओं का शिकार हो सकते हैं. उनके अंदर नेगेटिविटी तो नहीं है आपके लिए, उनके अंदर okay, नेगेटिव इंटेंशन तो नहीं है आपके लिए. But when you are talking with them, when you are sharing with them, okay, the thing which is living inside them, जो चीज उनके अंदर बैठ रही है, वो भी तो सुन लेगा ना. And what does that, that type of soul wanted? तो उनके लिए, okay, if any soul come to you, if any spirit come to you, okay, if any type of energy come to you, okay, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, that means, okay, there should be the involvement of the spirit, there should be the involvement of the energy. Without the energy, okay, that cannot harm you. There should be the connection between that person and you, okay. There should be the some medium, okay, and that spirit work as a medium for them also, for you also. Suppose मान के चल लीजिएगा, no question right now, okay, I'll give you a chance to ask the question, okay. Abhi please, okay, don't raise your hand now, ठीक है ना, otherwise so that will distract me, and no typing over here, ठीक है ना. So let me close the chat, okay, so that कि बीच में ना, otherwise many people, okay, they don't wanted to listen but they like to type, ठीक है ना. Understand one thing simply, पहले सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है ना, क्योंकि I know what I am teaching, many people they don't wanted to share with you. मुझे पता है, okay, जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते और उस विज्ञान को आपको समझाएंगे नहीं. I mean to say, I already told you we are, okay, around so many of the energies. मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में भी बताया कि हम एनर्जियों के बीच में हैं, ठीक है. Now your friend is, suppose your best friend is being also affected by the jealousy, ठीक है ना. Now, so this is a condition. Another condition is, समझ लीजिएगा, if someone come to your house, अथवा okay, if you come to visit me on my house, listen to me carefully, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा. If you come to visit me on my house, I did not ask you for a, water also, I did not give you tea also, I did not ask you for a food also, I did not, okay, did not take care of you for few days. Will you like to stay on my house? आप मेरे घर में आए हो, मैंने आपको चाय भी नहीं पूछा, मैंने आपको पानी भी नहीं दिया, मैंने आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, तो आप कितने दिन तक मेरे घर में रह पाओगे? Suppose if I am traveling to your house, if I am visiting your house, and you did not even ask me for a water, you did not even ask me for a coffee, okay, and
You did not ask me for a food. For how many days I like to stay in your house? Very less. If I have to stay in your house, okay, there should be some food. If you have to stay on my house, okay, you should eat something. आपको जिंदा रहने के लिए भी. True ना? Clear है? Clear है ना? यहाँ तक समझ आ रही है ना यहाँ तक, right? Okay. I'm trying to make it so simple so that that will be more easier for you to understand. Now, suppose you are visiting my house. I did not offer you anything. Will you stay on my house for a longer time? What is your answer? No, no. Now, what do you think that? Okay, suppose if you are staying in my house for a 1 year, 2 year, 10 year, 12 year, 15 year, 20 year, that means you are getting something from me. You are getting there, okay, some comfortability. You are getting, okay, what you are looking for. True, na? Right? And absolutely, that is the same thing with the negative energy also. If they are with you for a longer time, that means they are getting what they want and you are providing them knowingly or unknowingly. That is just not the responsibility of the person who did the black magic on you. That is also the responsibility because you are providing them the supply. You are providing them the food. You are providing them the shelter. That can be your house. That can be your physical body. So what is the energy that the negative energy is taking from you? Clear है यहाँ तक everyone? अगर आपके लाइफ में लंबे टाइम से ब्लैक मैजिक चल रही है, अगर आपके लाइफ में लंबे टाइम से जेलेसी चल रही है, अगर आपके लाइफ में उस प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं किससे लंबे टाइम से, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यू आर प्रोवाइडिंग देम सम फूड, यू आर प्रोवाइडिंग देम समथिंग दैट दे वांटेड. बेशक आप ना उस प्रकार के उस तथ्य को एक्सेप्ट करना ना चाहो, फिर भी many people do not wanted to accept the fact that okay, they are feeding those negative energy by themselves. Clear है? Understand this very simply. Understand, okay, and this is the most important thing that you need to understand it. जब तक आप उस चीज को अच्छी तरह से समझोगे नहीं, आप वहां से बाहर भी नहीं निकल सकते. कहने का मतलब है ये, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में है, कोई दिक्कत आपके लाइफ में चल रही है, कोई एज अ पैटर्न आपके लाइफ में घूम रही है, तो इसका मतलब है कि फीडिंग कौन कर रहा है, फीडिंग कौन दे रहा है, उसको खाना कौन दे रहा है. Who is that one, okay, which is giving them the food, which is giving them the supply? And the answer is you. कौन दे रहा है? आप दे रहे हो. Until and unless, जब तक आप, right, until and unless you give them the supply, for how long that negative energy can be with you? Until and unless, okay, you are providing them anything, how long that pattern can be on your life? समझ लीजिएगा इसलिए. And that is the reason why many people do not want to take that responsibility on their life. The problem कहाँ पे आ जाती है? Okay, they think that okay, other people are responsible for your miseries of life, but opposite था, ठीक है ना? आपकी लाइफ की हंसी भी okay, all the happiness belongs to you, sadness belongs to you, because everything in your life you are the responsible for it. I'm not responsible for your happiness. I'm not responsible for your sadness, and nobody is. You are responsible for everything. Even if you are affected by the black magic, that means you are providing them something that the energy wanted you. Suppose मान के चल लीजिएगा, you are a very healthy person, ठीक है ना? I'm just giving you some of the example. मैं आपको कुछ चीज ऐसे एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और समझने में आसानी होगी. You are a very healthy person, okay, and you have a very good and healthy, okay, relationship with your partner, husband or wife, ठीक है ना? When the black magic affect you, what happened? Now you will start, okay, having a distance between husband and wife. Husband और wife के बीच में distance start हो जाती है. You don't feel like to have a physical intimacy.
हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में दरार आना शुरू हो जाती है. यू डोंट फील लाइक ओके टू गो टू योर पार्टनर, यू डोंट फील लाइक टू इवन टच देम. Right? Clear it? And I know that okay, many people have did the same thing. You are a healthy person, okay, and naturally you are supposed to create that hormone. आप हेल्दी पर्सन हो, ओके, नेचुरली क्या है कि आपके शरीर से वो हार्मोन क्रिएट होनी चाहिए. कब तक? ओके, अंटिल यू आर 80 एटलीस्ट. जब तक 80 साल के हो तब तक आपके शरीर से वो हार्मोन निकलनी चाहिए. But since okay that hormone has started okay, I mean did not produce inside you, this means someone is taking it. कहने का मतलब क्या है? कोई ले रहा है उस हार्मोन को. Someone is taking that away from you, and that is the reason why you don't feel anything. That is the reason why you feel like a dead. तो इसीलिए ओके शरीर आपका है, हार्मोन कोई और लेके जा रहा है. तो क्या जितनी प्रोडक्शन आपके अंदर होनी चाहिए, क्या आप उस प्रोडक्शन दे पा रहे हो? बिकॉज कोई और उसको लेके जा रहा है ऑलरेडी. तो अभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कहां पे आ जाएगी? दिस इज वन एग्जांपल ओनली. ओके, ठीक है ना? क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, एंड आई एम जस्ट टेलिंग दिस वे सो दैट विल बी मोर easier for you, and I believe that all of the people over here are completely mature people. इतने मुंह फॉट में ना डायरेक्टली आपके मुख के सामने बोल देने वाले लोग नहीं मिलते लाइफ में. और आपको अच्छा ना भी लग सकता है बट रियलिटी यही है. तो अगर आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, so that means okay the hormone that was supposed to create okay the harmony, the hormone okay that was supposed to create a healing inside you, that has been taken by someone else. And that's why okay that pattern is again repeating inside you. तो इसीलिए वो पैटर्न आपके लाइफ में और ज्यादा घूम रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो क्रिएशन होनी चाहिए थी वो क्रिएशन कोई और लेके जा रहा है. अदरवाइज देख लीजिएगा ओके, see your ancestors, they were healthy till they die. जब तक वो मरते नहीं थे तब तक वो हेल्दी थे. बट नाउ ओके एट द एज ऑफ 20-25 ओके यू डोंट हैव इवन द फीलिंग लेफ्ट फॉर मेनी यंग पीपल. इवन ओके अभी जो है, जब आई मीन कपल के बीच में जितना जो फीलिंग रहना चाहिए था, आई मीन पीपल हैज बिकम लाइक अ रोबोट. ओके, फीलिंग नहीं है फिर भी साथ में रह रहे हैं. किसके लिए? सोसाइटी क्या बोलेगी, बच्चे क्या बोलेगी, या फिर लोग क्या बोलेंगे. Okay, not from the heart, okay, but from the mind. और जितना जो एक जुनून होना चाहिए था, जितनी आग होनी चाहिए थी, ओके ठीक है ना, जो आत्मा में एक दम होनी चाहिए थी, वो अभी कहीं पे लुप्त हो रही है. जो एनर्जी होनी चाहिए थी राइट लाइफ में, क्या डू यू स्टिल फील दैट एनर्जी ऑन यू? See yourself on the mirror, the charm that you should have in your life. क्या वो charm क्या अभी भी आपके लाइफ में है? अगर नहीं है, if you have lost that, तो समझ लेना someone has taken it. Sorry to say, okay, I'm directly, I mean this way, okay. शायद हो सकता है कि maybe you may not like it, okay. हो सकता है कि आपको ये चीज पसंद ना आए, but I want you to see your life again. The energy that you used to have, the feelings, okay, the liveliness, that the loveliness, the charm that you used to have, and the emotions. You're okay, ठीक है ना? क्या अभी आपके अंदर सारे के सारे चीज है? पर आपके चेहरे देख लीजिएगा और आपको भी जो तो अंदर से आवाज आ जाएगी कि आप वही पर्सन हो जो पहले सारे के सारे चीज आपके अंदर होता था. एवरीवन क्लियर? ओके, तो समझ लीजिएगा इसलिए ओके कि many times right okay you okay so let us
let us not, okay, I mean, make other responsible for our life. This is always our decision, this is always us. Let us start taking the responsibility of our own life. हमें अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी चाहिए, जीवन की डोर अपने हाथ में लेनी चाहिए. एंड लेट अस नॉट अगेन, ओके, बहुत सारे लोगों के पैटर्न को देखने के लिए मिलता है कि दे ब्लेम देयर कर्मा, they blame their karma that they had never seen in their life. सच में वो है नहीं है किसी को भी पता नहीं, ठीक है ना, सच में है नहीं है किसी को भी पता नहीं है. So nowadays, right, okay, समझ लीजिएगा, I'm adding something and I want you to be very, very clear, careful about this. Many people do the past life regression. They believe that, okay, they have seen their past life. I don't know, because I mean, I get a personal message on my that app, okay, so that, okay, they are that this healer, that healer, okay, तो उनको बहुत सारी चीज आ जाती है. मैं आपको सम्मान करता हूँ, but I want you to understand some fact about it before, ठीक है ना. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ फैक्ट को सामने से थोड़ा सा लॉजिक लगा के देख लीजिएगा. The fact is that, okay, every second your mind get 2.5 million information. हर सेकेंड आपका माइंड 25 लाख इंफॉर्मेशन लेता है. और हमें कितनी याद होती है? हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू रिमेंबर? हार्डली 10. कितना? हार्डली 10. तो वो फिर कहाँ चला गया? दैट इज स्टिल देयर इनसाइड यू. बचपन से आपने जितनी भी देखा था, जो कुछ भी सुना था, जो कुछ भी थॉट किया था, कल्पना किया था, every experiences that you are having from your childhood to right now, that is everything is stored inside you. वो कहाँ पे? वो आपके अंदर है. Now calculate it, okay, every second if you are getting 2.5 million information. सपोज मान के चल लीजिएगा, आप मुझे भी देख रहे हो, आप मेरे टीके को भी देख रहे हो, आप मेरे हाथ को हिलते हुए भी देख रहे हो, आप मेरी आंखें को, okay, ब्लिंक करते हुए भी देख रहे हो. You can even, okay, listening to my words, okay, ठीक है ना. आप अब मेरे पीछे जो जितने भी बुक्स है, वो सारे के सारे बुक्स को भी देख रहे हो, एवरीथिंग, ओके, ईच एंड every detail. So that is called information that you are getting, and such type of information every second. How much you are getting? 2.5 million information. तो एक सेकंड में आप 25 लाख इंफॉर्मेशन को ले रहे हो. तो एक दिन में मल्टीप्लाई द 25 lakh into 86400, that much information. Multiply that by, okay, 365. एक साल में आप कितना ले रहे हो, and multiply that by, okay, the number of years. How old are you? ठीक है ना. So that much information is already there on your physical body. उतनी फिजिकल बॉडी के अंदर आपका उतना डाटा ऑलरेडी भर चुका है. So do you think that, okay, going through the trance, okay, and passing through this, okay, so that means the huge amount of data is already there inside you. So आपको क्या लगता है कि whatever you said about the past life, okay, you are not even, okay, crossing only 1% of the information of this life also. Do you think that, okay, you can go to the past life? आपको इसी लाइफ में पता नहीं है कि एक सेकंड में जो 24 लाख, ओके, से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, उसके बारे में आपको पता नहीं है. क्या क्या सोचा था, क्या क्या हो रहा था, क्या क्या फील किया था, एवरी एक्सपीरियंस जो आप भूल भी चुके हो, सारे के सारे इंफॉर्मेशन कहाँ पे? आपके अंदर है. आपको लगता है कि तो लाखों करोड़ों के रूम बराबर के डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखे हो कि उस रूम को पार करते हुए आप यहाँ से पास्ट लाइफ में जा सकते हो. अगर आसानी से उस तरीके के पास्ट लाइफ में जा सकते थे ना, तो भगवान हमें, ओके, अपनी पास्ट लाइफ को भुलाने की शक्ति नहीं देते थे. वी फॉरगेट एवरीवन, वी फॉरगेट. समझ लीजिएगा अगेन. सो मस्ट ऑफ द पास्ट लाइफ, ओके, हु डू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ओके, you will see that this has happened, that has happened, this person was this person, okay. Now समझ लीजिएगा. So that is everything is been created by your mind. वो सारे के सारे चीज क्या है? आपके माइंड से क्रिएट किया गया चीज है. I want you to learn about the mind more carefully.
कि आपका माइंड कितना स्मार्ट है। वो चाहता है तो अमृत भी बना सकता है, वो चाहता है तो विष भी निकाल सकता है। कहां से? आपके अंदर से। इट कैन क्रिएट द द नेक्टर ऑफ immortality, and even it can create the poison inside you. That is how powerful our mind is. तो जितनी भी चीज इंफॉर्मेशन है, सपने भी आप कहां से देख रहे हो? ज्यादा से ज्यादा इसी वर्ल्ड से देख रहे हो, with all those datas. Obviously, right? Okay, if you know how to clean that data, your life will be far better. If you know, okay, how to clean that data, your life will be better. But whatever you see on a trance, that doesn't mean that, okay, that was your real past life. That was the created past life. Otherwise, okay, देख लीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के सुन लीजिएगा कि okay, you see the entire life on a 10-minute, 20-minute or a 30-minute. So that means, okay, you see one paragraph, you see another paragraph, and your mind just started, okay, connecting that paragraph. That's all. कहने का मतलब है, okay, now why I'm telling all this thing? You may come from different background, okay, many people are a grandmaster on different topics, okay, but I want you to think logically. थोड़ा सा ना कभी कभी लॉजिक लगा के भी सोच लीजिएगा कि what you are doing right now. क्या आपने कभी लॉजिक लगा के सोचा है? क्या आपने कभी लॉजिक लगा के देखा है? And that is very very important. ठीक है ना? दूसरी चीज, so basically when you are practicing something, basically when you are especially practicing, okay, some type of process, some type of rituals, the more sacred, the more private you do, okay, the probability of successing that sadhana, that ritual will be higher. कोई भी साधना हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी उस प्रकार की चीज आप जितना गोप्य तरीके से करते हो, आप साधना में सफलता होने की चांसेस उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। समझ लीजिएगा, यू आर डूइंग अ पूजा, ठीक है ना? आप जैसे ही मंदिर में चले गए, ओके, आपने 10 सेल्फी करके ना 10 सेल्फी आपने डाल दिया। नाउ hundreds of people are watching you through your WhatsApp, through your social media. Do you think that their energy will help you? आपने अपने मंदिर की पोस्टर डाल दिया, अभी उसकी इंटेंशन कहाँ गई? Their intention will harm your temple also. समझ लीजिएगा, okay, suppose if any negative energy attack you, they don't attack you first, they will attack your temple at first, they will attack your altar at first, because even they know if your altar is open, okay, if your temple is open, if the god or the goddess is in your temple, okay, if they let them free, they will come to rescue you, they will come to help you. So that's why they block your temple at first, and that is the reason why many times, okay, you don't wanted to go to the temple, आपको जाने का भी मन नहीं करेगा, you don't wanted to sit, you don't wanted to do all the sadhana, and whenever you go there, okay, you feel completely different. होती है ना लाइफ में कि जब आप everything was good, but when you go to your own temple, you feel sleepy, you feel this, you feel that, you feel like, okay, do not wanted to do the sadhana at all. समझ लेना, your temple has been, I mean, binded again with the negative energy. Clear है? इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि नेगेटिव एनर्जी को भी पता है कि सबसे पहले अगर वो आपके ऊपर अटैक करेंगे तो आपके घर के देवता, आपके घर के इष्ट देवता, चाहे वो वास्तु देवता हो, चाहे फिर आप जिसकी पूजा करते हो, जिसकी पाठ करते हो, जिसकी ध्यान करते हो, आपके जो गुरु है, वो आके आपको क्या करेंगे? बचाएंगे, आपको रेस्क्यू करेंगे। मगर पहले ही अगर उनकी शक्ति को बांध दिया जाए, what happen, okay, if they bind, okay, the power of the god जो आपके घर में है,
ठीक है ना? तो क्या वो आपको बचाने के लिए आ पाएंगे? And the answer is no, because they first lock your room, they first, okay, तो इसीलिए सबसे पहले अटैक, अगर नेगेटिव एनर्जी की अटैक होती है वो कहाँ पे होती है? आपके टेम्पल के ऊपर होती है। आर यू क्लियर एवरीवन? Very important topics, and I know that, okay, no people wanted to talk about these topics, so that's why today we'll first will clean your temple, and you are going to do that by yourself. आप उसके ऊपर खुद से करने वाले हैं, एंड सी द डिफरेंस, ओके, एक दो दिन करके देख लीजिएगा, यू विल गेट द डिफरेंस रिजल्ट इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में, ओके, बहुत कुछ एज अ डिफरेंस रिजल्ट को देख पाओगे। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो नंबर वन थिंग्स, आई वांट यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ नाइफ। ग्लास ऑफ वाटर एंड अ नाइफ। अगर घर में हो, बाहर हो, तो वो चीज लेके आ जाइएगा। ग्लास ऑफ वाटर है तो ऑल एंड गुड। ग्लास ऑफ वाटर एंड अ नाइफ सबको लेके आना है राइट नाउ। Now, I want you to open your Lama Fera mantra. I want you to open your Lama Fera mantra. Now, what you need to do? क्या आपको करना क्या है यहाँ पे? So you will be chant, okay? You will be looking at your mantra. You will be chanting that, I mean, Lama Fera mantra, and you will be blowing, okay, on the glass, and you will be caught that, okay, by the knife. Suppose ये मेरा नाइफ है, ठीक है? Suppose this is my knife. The knife, I should use it, okay, like this way. This. If this is my knife, okay, I should use my knife like this way. देख लीजिएगा, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि मैं नाइफ को किस तरीके से यूज करूंगा, ऐसे यूज करूंगा। ओके, नाउ I'll chant the mantra, okay, and at last I'll blow it 3 times on the water, and I will cut that water with this knife. Again I'll chant the mantra, again blow it 3 times, and again cut the water with this knife. Do it right now for 21 times. 21 बार करना है।
ओम मणि पद्मे गुरु, माला झांकरी गुरु, रिठे झांकरी गुरु, बाला भैर गुरु, जंगल का सात भाई शिकारी, गुरु मणि राम ले संग्रुमय गुम्बा को भोटे लामा गुरुलाई जगाओ। 12 मधेश खंड को राजा, कुमाले को धनी, कुमाले को गुरु, थारू गुरु दल सिंह लामा गुरु जगाओ। मुनि मुनि महामुनि साक्य मुनि, रुमाल झांकरे लोके झांकरे खड़े झांकरे को शक्ति ले, तिब्बत को भोटे लामा गुरु जगाओ। बीरे झांकरी 5 भाई नमोरो ले, संग्रुमय गुम्बा को भोटे लामा जगाओ। सत्य जगाओ, सत्य टिकाओ, सत्य डगाओ, सत्य सत्य महासत्य ध्रुव सत्य गोरख सत्य महागुरु महापद्मे की शक्ति ले महासाम्बला का दादा गुरुलाई जगाओ। नागनाथ पैताला जागा, चरपटनाथ दाहिने जागा, लोहिपा लोल्ल बिरुपा डोम्बीपा सबरीपा कंकालिका आदि गुरुले 10 दिशा छेकी थुनी, बक्सी छौणालाई बाँधेर गुरु संख्या वीर गुरुलाई जगाइदेऊ गुरु साधना की बाचा। Like that. I told you to use the knife this way. पेंसिल की तरह लेना नहीं है. Use the knife this way. हाँ. Don't take it like a pencil. Don't take it like this. This way. कुछ चीज लेने की तरीके होते हैं.
जल्दी कर लो, मोर फास्टर। Don't take it like this way. Okay, I told you many times the knife should be this way. हाथ से नहीं होगा, ठीक है ना? That has to be done by knife only. कुछ चीज नाइफ से ही होती है, कुछ चीज हाथ से नहीं होती है। वन मोर मिनट, ओके? जहां जहां पे है, आई मीन डू द मंत्र लास्ट टाइम एंड लीव इट। वन मोर मिनट।
Now, with my call, whenever I snap my finger, okay, during that time you will cut that water with the knife. ठीक है ना? But listen to me, look at me. Many people, बहुत सारे लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ है, पहले चीज तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा. And how many times I need to tell you, okay, this is not the pencil, ये शस्त्र है. शास्त्र नहीं है. शास्त्र is done by this way. Shastra is always, okay, done by this way. This is the weapon we are using, okay, we are manifesting that power to cut the negativity, okay, which has been, okay, affecting your life, which has been affecting your temple. जो लातों की भूतना बातों से नहीं मानते, you are showing your leg to them. पहली चीज remember that, ठीक है ना? This way, everyone show to me. I'll see it. Yes, everyone. मुझे दिखाओ पहले, अभी मत करो, छोड़ दो. I'm looking at every one of you. Okay, ठीक है ना? Everyone saw me. Yes, I'm looking at 25 people each. पुष्पा राव जी, what is that? क्या कर रहे हो? अपोजिट करो. पकड़ना कहाँ पे? श्रीलता जी, I told to bring a knife. मेरे पास, ओके, मैंने यहाँ पे पेन नहीं बोला था. Always remember, while you are holding this, जब आप हथियार को यूज कर रहे हो, okay, the face, the sharpness should not face towards you. The sharpness should face outside of you. थोड़ी सी लॉजिक भी लगा लो ना यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है कि हथियार की वो चीज अपने तरफ करना है या बाहर की तरफ करना है, वो चीज भी आप लोगों को बोलना पड़ता है. The sharp side, okay, of the weapon should be always, okay, that should fit outside, not towards you. We are sending that energy outside, not on you. Clear it? Be ready on this position. ओम मणिपद्मे गुरु, माला झांकरे गुरु, रेठे झांकरे गुरु, बाला वायर गुरु, जंगल का साथ भाई शिकारी गुरु मणिराम ले संग्रमय गुम्बा को भोटे लामा गुरुलाई जगाओ. परमदेश खण्डको राजा कुमालेको दानी कुमालेको गुरु थारू गुरु दलसिंह लामा गुरु जगाओ. मुनि मुनि महामुनि साक्य मुनि रुमाल झांकरी लोके झांकरी खड़े झांकरी को शक्ति तिब्बते को भोटे लामा गुरु जगाओ. बेरे झांकरी पांच में नमो रोले संग्रमय गुम्बा को भोटे लामा जगाओ. सत्य जगाओ, सत्य टिकाओ, सत्य टिकाओ, सत्य सत्य महासत्य दुर्ग सत्य गोरख सत्य महागुरु महापद्मे की शक्ति ने महासाम्बाला का दादा गुरु लाई जगाओ. नागनाथ पैतला जगह चरपटना दाहिने जगह लोही पल्लो लब्बीरूपा डम्बीपा सबरीपा कंकालिका आदि गुरु लेता सिद्धि सचकी तूने बख्शी छाउंडा बांधेर गुरु संख्या बीर गुरावलाई जगाए दो. गुरु साधना की बात हो. Now cut that water. Again, take the knife, okay, that the sword, the sharp side should face outside, अपने तरफ नहीं. जब भी, okay, after cutting this, okay, the sword should come up. ठीक है ना? हथियार ऊपर की तरफ आनी चाहिए, नीचे की तरफ झुकना नहीं चाहिए हथियार को. That should come up. Clear है? ओम
मणि पद्मे गुरु माला झंकरे गुरु रिठे झंकरे गुरु बाला महेर गुरु जंगल के साथ भाई शिकारी गुरु मणि राम ले छंग को भोटे नाम गुरु लाई जगाओ बारामती खंड को राजा कुमार को दानी कुमार को गुरु धारा गुरु दल सिंह नाम गुरु जगाओ मणि मणि मा मणि साके मणि रुमाल झंकरे लोकी झंकरे खाटे झंकरे को शक्ति ले तिब्बत को भोटे नाम गुरु जगाओ बेरे झंकरे पांच भाई नाम ले संगम को भोटे नाम जगाओ सत्य जगाओ सत्य टिकाओ सत्य टिकाओ सत्य सत्य महा सत्य दुर्व सत्य गोरख सत्य महागुरु महापद्मे की शक्ति ले महा सांबला का दाता गुरु लाई जगाओ नागनाथ पे चला जगह सपटना दाइनी जगह लोई पालो बिरूपा डोम बिपा सबरी पखंगली का आदि गुरु ले दस दिशा से कि धुनी बक्सी छावनाला बांधेरा गुरु संख्या बीर गुरा ओलाई जगह इधर गुरु साधना के बाद कट ओम मणि पद्म गुरु माला झंकरे गुरु रेटे झंकरे गुरु बाला भैन गुरु जंगल के साथ पैसे करे गुरु मणि राम ले संगम को बोटे नाम गुरु लाई जगह बारामती खंड को राजा कुमार को दानी कुमार को गुरु तारा गुरु दल सिंह नाम गुरु जगह ओम मणि मणि महामणि साक्य मुनि रुमाल झंकरे लोकी झंकरे खड़े झंकरे को शक्ति लेते पते को बोटे नाम गुरु जगह बेरे झंकरे पांच भाई मोरू ले संगम को बोटे नाम जगह सत्य जगह सत्य टिकाओ सत्य टिकाओ सत्य सत्य महा सत्य दुर्ग सत्य गोरख सत्य महागुरु महापद्मे की शक्ति महा संबला के दाता गुरु लाई जगह नागनाथ पे चला जगह सपटना दाइनी जगह लोई पालो बिरू पडम बिपा सबरी पखंगली का आदि गुरु ले दस दिशा से कि धुनी बक्सी छावनाला बांधेरा गुरु संख्या बीर गुरा ओलाई जगह इधर गुरु साधना की बात cut the water again. Every time when you cut the water, your knife should come up. हथियार ऊपर की तरफ आनी चाहिए जब आप काटते हो। उसके बाद हथियार नीचे की तरफ, हथियार झुकना नहीं चाहिए। हथियार आपका है। You are cutting the energy which is blocking your way, the energy which is blocking your temple, the energy which is blocking your altar, the energy which is binding the energy of your house. हथियार तो उठाना सीख लो अच्छी तरह से। ओम मणि पद्मे गुरु माला झंकरे गुरु रेठे झंकरे गुरु बाला भैन गुरु जंगल के साथ वैसे करे गुरु मणि राम संगम को बोटे नाम गुरु लाई जगाओ बारामती खंड को राजा कुमार को दानी कुमार को गुरु थारा गुरु दल सिंह नाम गुरु जगाओ मुनि मणि महामणि साक्य मणि रुमाल झंकरे लोकी झंकरे खाटे झंकरे को शक्ति ले तिब्बती को बोटे नाम गुरु जगाओ वीरे झंकरे पांच भाई नाम मोरू ले संगम को बोटे नाम जगह सत्य टिकाओ सत्य डगाओ सत्य सत्य महा सत्य दुर्ग सत्य गोरख सत्य महागुरु महापद्मे की शक्ति ले महासाम्बाला का दाता गुरु लाई जगाओ नागनाथ पैतला जगह सरपटना दाहिने जगह लोईपा लोल्लभ बिरूपा डोम्बीपा सबरीपा कंकाली का आदि गुरु ले दसै दिशा से कितने बक्सी छोड़ेला बांधेरा गुरु संख्या बीर गुरावले जगह दे गुरु साधना की बाचा कट इट। Now take the little water in your hand and sprinkle अपने ऊपर, sprinkle it. Now take the water in your temple and अपने temple को मारना है। Every god and goddesses listen to me at first. पहले सुन लो अच्छी तरह से। आपको मंदिर में जाना है। All the god and goddesses, all that premises, all the altar, whatever you believe on, जो आपके घर में कुछ भी चीज है उस प्रकार की चीज वहां पे आपको पानी से मार देना है। And come, and see the difference how you feel it right now. जाके आ जाएगा। जितने भी घर में यंत्र है, जितने भी देवी देवता है, जहाँ पे आप पूजा करते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो,
So how are you feeling right now? Yes, Maridula. सर एक पॉजिटिविटी फील हो रही है, खुशी हो रही है अंदर। हम्म, एंड सर व्हाट टू डू विद द रिमेनिंग वाटर? ये हम अपनी किचन वगैरह में भी छिड़क सकते हैं, इसको अपने बच्चों पर भी पी लो। पी लें। हाँ जी, बोलिए ज्योति जी। हाँ सर, आई एम फीलिंग हेवीनेस हियर और बहुत मतलब प्यास भी बहुत लगी अभी एक्चुअली। क्योंकि उस पानी को पी लो, ठीक है ना। हाँ जी अर्चना जी बोलिए। सर घर के दूसरे लोगों को भी पिला सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को? हाँ किसी को भी पिला सकते हैं। सर राम मोहन जी सर अनम्यूट कर लीजिएगा सर। सर अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, नमस्ते जी। So it's very great, like I'm feeling my breath is very calm and excellent. I'm feeling so happy. Thank you ji. It's very nice. हेलो सर। सर बहुत लाइट लग रहा है, बहुत हल्का हल्का लग रहा है, जैसे ही वो पानी सब जगह ये किया, स्प्रिंकल किया, तो बहुत ही ऐसा एनर्जी अपलिफ्ट लग रहा है सर। बहुत ही मीन्स जो दिल पे से हेवीनेस था वो एकदम से कम हो गया है ऐसा लग रहा है, और एकदम माइंड फ्रेश हो गया है। तो नमस्ते सर। सर बहुत बहुत थैंक यू सर, gratitude, lots of thanks to you sir for taking out your precious time and sharing this and this information, all this teachings with us. सर आई एम फीलिंग मच बेटर, बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपसे ये पूछना था कि मैनी अ टाइम्स इट सो हैपन कि सर हमको जब कोई किसी तरीके का गिफ्ट देता है तो को ये पता होता है कि सर वो एनर्जीज उसमें ठीक नहीं है, तो ये वाला जो पानी है क्या हम उस पे छिड़क के कुछ कर सकते हैं सर? Obviously this is a very nice question Jaswinder ji, very very important. Okay, remember एक चीज, okay, everyone listen to me carefully at first. 200 साल पहले, 300 साल पहले, okay, there used to be no temple inside the house. घर के अंदर टेम्पल नहीं होता था, मंदिर नहीं होता था, ठीक है ना, बिकॉज द एनर्जी ऑफ अ टेम्पल विल इम्पैक्ट यू। अभी आज मैं उस टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा नहीं आऊंगा। जिसके घर में जितने ज्यादा म्यूजियम बने हुए ना देवी देवता के, उतने ज्यादा लाइफ में दिक्कतें होंगी। द लेस मूर्ति, द लेस पिक्चर ऑफ द गॉड इज इन योर हाउस, दैट इज फार बेटर फॉर यू। ओके, क्योंकि the energy does not think from logical way. Energy होती है। Okay, so if you are having a completely different type of energy, if you are having completely different type of energy in your house, if you had completely different type of, okay, devi devtas on your house, the energy will fight. तो एनर्जी के बीच में भी फाइट होती है, और दिक्कत कहाँ पे होती है? आपको होती है। ओके, तो घर में जिसकी आप पूजा करते हो उसको तो रख लीजिएगा। अगर ओके बहुत सारी देवी देवता की मूर्ति की फोटो वगैरह आप अपने घर में सजा के रखे, म्यूजियम बना के रखें, प्लीज घर से निकाल दे दीजिएगा। हो सकता है कि दैट माइट बी द रीजन फॉर योर डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स। समझ लीजिएगा, सपोज आपके घर में देवी है, सपोज मेरे घर में काली देवी रहती है, ओके, मैं उनकी पूजा करता हूँ। सो व्हेनेवर ओके द पूर्णिमा कम्स, व्हेन the power of Kali will increase, okay, automatically, so that the feeling of happiness will increase. And when the Amavasya will come, okay, when her power will go down, so during that even my power will also go down. I'm just giving a one example. मैं बस आप लोगों को एक example दे रहा हूँ, ठीक है ना। I mean to say, suppose I'm doing the worship of the Bhairava ji, और मेरे घर में भैरव जी, तो obviously
When it comes the time of Ashtami, I will be more aggressive. So every type of god and goddesses, okay, that will impact you. तो घर में ज्यादा हैं तो प्लीज ओके आपको ज्यादा वो चीज सोचने की जरूरत नहीं है, बोल दीजिएगा कि ओके जो दोष लगना है डॉक्टर सुविधि को लगे, हमें मुक्ति दो, ठीक है ना। अगर आपको उससे भी निकालने में तकलीफ होती है तो, बट यू विल सी दैट ओके इफ यू टेक देम ओके, आप उसको या तो नदी में विसर्जन कर दो या तो आई मीन किसी पेड़ के नीचे, स्पेशली पीपल पेड़ के नीचे जाके उनको विसर्जित कर दीजिएगा। सी द डिफरेंस इन योर लाइफ ओके, कि अगर आपके घर में 10 पिक्चर है देवी देवता से रिलेटेड, 10 मूर्तियां हैं ओके, तो योर एनर्जी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। आपको कोई भी काम करने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ता है, नहीं तो करके देख लीजिएगा, देन यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस। नीतू जी। नमस्ते गुरुजी। ये अभी पानी करने के बाद में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिख रही है एंड इनफैक्ट आई एम फीलिंग सो लाइट इन माय बॉडी। मैंने ये आपका पहले भी किया हुआ है, इट इज सिमिलर इफेक्ट। जितनी बार भी करो ना, इट्स अमेजिंग। द होल हाउस इज लुकिंग सो ब्राइट। थैंक यू। अस्मी गुप्ता। नमस्कार गुरुजी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो रिचुअल अभी हमने किया, जो पानी काटा और ये हमने किया है, तो हम लोग लाइक जैसे आज तो हमने किया, अगर नेक्स्ट टाइम अगर हमें करना है तो एवरीडे कर सकते हैं या कुछ टाइम? आपको खुद से करना है, पहले मंत्र को तो सिद्ध कर लो, अभी मंत्र को देखते हुए कर लेना, ठीक है ना। श्रीलता। हेलो, नमस्ते गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं होटल के रूम में थी, इसलिए मैं पार्टिसिपेट करते वक्त मैं नाइफ नहीं ला सकी। आपने पूछा भी कि व्हाई आर यू होल्डिंग पेन, और दूसरी बात यह है कि मैं आपने जो भी प्रोसीजर अभी बताया, जो भी सिद्धि, जो भी मंत्र अभी बताया, मैं अभी शिफ्ट की हूँ घर, मेरा सारा फर्नीचर सब बंद पड़ा हुआ, मेरा मंदिर सब बंद पड़ा हुआ। तो ये हाफ ऑफ द थिंग क्या मैं अभी करके, बाकी जब मैं घर के मंदिर स्टार्ट करके, तब तक मैं मंदिर को, अपने मंदिर को इमेजिन करके घर का मैं ये अभी के लिए वही कर लीजिएगा। देखो इम्पोर्टेंट चीज है, मंदिर का मतलब जो है देवी देवता आपके साथ चलते हैं ओके, डजंट मैटर कि आप मंदिर में हो ना हो, दे विल बी ऑलवेज विथ यू। उनको भी क्लीनिंग करने की जरूरत होती है। हाँ सर। जो सर जल है, तो सर हम इसको घर के जो सर और कमरे हैं, कोने हैं सर, उनमें भी सर कर सकते हैं इनको? सर कर सकते हैं सर, कर लीजिएगा। यस सर। Namaskar, sir. I am Venkatramanan from Coimbatore. Sir, this can I do this ritual very often? Number one. Do it every day also, sir. Because now see, okay, if you are doing the practice for a very long time and if you are not getting the result, that means something is missing. समझ लीजिएगा कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है अभी देख लीजिएगा। आज आपने एक बार किया, फिर भी लाइफ में, शरीर में, थॉट प्रोसेस में, आंखें में, एनर्जीज में, हाउ मच डिफरेंस आर यू गेटिंग? डू इट रेगुलरली। डॉक्टर स्वाति। सर यही क्वेश्चन था मेरा, मिल गया आंसर। डेली कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर रितु। थैंक यू सो मच सर। मैंने जब से पिया है तो मुझे यहाँ चेस्ट में बहुत तेज पैल्पिटेशन हो रही है। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि आपके शरीर के अंदर से जो चीज है अभी वो नीचे की तरफ जा रही है एंड दिस इज कम्प्लीटली ओके, ठीक है ना। शिवानी जी। I'll take another minute only, yeah. नमस्कार गुरुजी। गुरुजी मेरे सवाल मोस्टली आंसर हो गए हैं, पर मेरा एक सवाल है। मेरी मदर इन लॉ की डेथ अभी रिसेंटली हुई है। घर में पूजा सब कर लिया, जो भी किया जाता है, जो उनका किया जाता है सब कुछ, लेकिन उनके कमरे में जब भी जाओ, जबकि वो बहुत ही स्पिरिचुअल थी, पर मुझे डर लगता है, मेरे बच्चे को भी डर लगता है। और एक आधी बार मेरी बेटी ने बोला है कि मम्मी मेरे को ना दादी नजर आई है। मेरे को समझ नहीं आता, और मंदिर उनके कमरे में, जो अब वो नहीं है, मंदिर उन्हीं के कमरे में है।
कहीं पे भी हो इसको रेगुलरली कर दीजिएगा, ओके, ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। यस अनुपमा, अनम्यूट कर लो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, पानी का टेस्ट एकदम चेंज हो गया, तो एक अच्छी सी स्मेल आ रही थी पानी से, तो यही कहना चाह रहे थे सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। I'll take three more minute only, okay? स्वाति जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग लेडीज है तो पीरियड्स में चलेगा क्या, मतलब ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं? पहले की वीडियो देख लो, मैंने क्या बोला था। पहले की वीडियो नहीं देखती हो और फिर बार बार सेम क्वेश्चन करते हो, वो चीज मुझे पसंद नहीं है। प्लीज ओके, चेक द वीडियो, व्हाट आई टेल अबाउट द पीरियड, व्हाट आई टेल अबाउट द सूतका, समझ लीजिएगा। on Buddhism, okay, no more question today, okay. I just wanted to tell you one very simple thing. on Buddhism, even after you die, no more question, okay, today, okay. मेरे पास टाइम नहीं है, okay. मेरे उसके बाद भी मेरे क्लासेस हैं। on Buddhism, even if you after you die, you offer your physical body to the vulture, ठीक है ना, कि आप अपने फिजिकल बॉडी को भी ओके जलाते नहीं हो, क्या करते हो, वल्चर को दे देते हो, सो दैट कि वल्चर विल टेक द प्लेस, ओके। एंड जो हड्डी बचा हुआ है केवल उस हड्डी की दाह संस्कार होती है। सो दैट इज द फीलिंग, ओके, ठीक है ना। अगर बुद्धिज्म के अंदर या फिर जो हमारे जो शास्त्र में बोला गया कि अगर मुझे नरक जाने से 100 लोगों को स्वर्ग मिलती है, आई एम रेडी टू गो टू द हेल, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। Anyway, I hope that all of you has enjoyed today's lesson. रेगुलरली कर लीजिएगा, आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, एंड एवरी टाइम ओके यू डू दिस प्रोसेस ऑन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर योर हाउस, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर, स्पेशली आपके टेम्पल, that should be always clean. Your temple, okay, should not be interfered by any such type of energies. If your temple is open, your mind is open. If your temple is open, your power are open. Okay, हम यहाँ पे केवल शास्त्र ही नहीं, शस्त्र भी सीख रहे हैं, समझ लीजिएगा। शस्त्र तो इसीलिए हर एक योगी के पास हाथ में माला भी होती है और हाथ में त्रिशूल भी होता है। They all know, okay, to use, okay, how to use the pen. They all know how to use the weapon also. It is just not about, okay, using the pen. You should know, you should have every those type of things in your life, okay, जिसके माध्यम से आप शास्त्र को भी जान सको और शस्त्र को भी जान सको। कभी शास्त्र काम आती है और कभी शस्त्र काम आती है, ठीक है ना। As I told you, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है ना। So many times you need to show them, yes, you are capable of removing such type of energies from your house. This life belongs to you. Your destination belongs to you. And अब उस प्रकार के लोगों को responsibility मत ठहराइएगा आपके मेजरीज के लिए। Let us take every responsibility on your hand and remove, especially आपके मंदिर से, ठीक है ना, नेगेटिव एनर्जी जैसे जैसे चली जाएगी आपका लाइफ, ओके, योर लाइफ विल ओके ब्लूम लाइक अ फ्लावर। आपकी लाइफ ओके फूल की तरह खिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी मंदिर की एनर्जी ओके तो क्लीन होती चली जाएगी, सुरक्षित होती चली जाएगी, आपका लाइफ उगता हुआ सूरज की तरह ऊपर उठना शुरू होगा। I hope that is all of you enjoyed today's session. By the way, I had sent the link of my Instagram. Okay, those who are in Instagram they can follow me. Okay, जो Instagram में है वो मुझे follow कर सकते हैं. And if you guys follow me, okay, on the Instagram, please at least एक message डाल दीजिएगा so that at least I can remember you that you belongs to this group. I hope Devi Kaske Kali ka bless all of you. Namaste. Thank you.